हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीआईबी सीआईबी प्रेप पे। जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टरिंग, फोरफिटिंग एंड ट्रेड्स के बारे में, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स कंटेंट ऑफ यूनिट नंबर 37, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग एंड trade receivables, a discounting system. So basic introduction, what is factoring, history, type of factoring, domestic factoring, international factoring, bills discounting versus factoring, fee involved in factoring, advantages of factoring, then forfeiting, mechanism of forfeiting transactions, fee involved in forfeiting, advantages of forfeiting, difference between factoring and forfeiting, then trades, participation under trades, process flow under trades, and eligibility criteria to set up and operate trades. Okay, so these are some subtopics and very small subtopic basically while you go through the course content, or even if you follow your books or as well. So these are very small subtopics, but we have number of subtopics in this particular unit. Especially, like we can say, the entire topic is based on three areas. Okay? So now, whenever we talk about factoring and forfeiting, okay, so these are some alternative source of finance for companies to manage their like वर्किंग कैपिटल बेसिकली, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स है, स्पेशली इन केस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, तो कंपनीज दे जनरली नीड शॉर्ट टर्म फंड्स. So for that particular one, we have factoring and forfeiting. Yeah. So trade is a platform where generally these bills are discounted. Okay. So first we will understand about the factoring and forfeiting, basically how they generally work. So whenever we talk about factoring and forfeiting, let's take an example of XYZ Limited. So suppose that there is a XYZ Limited who are involved in export business, which is an exporter from India. ठीक है, so ये आपका exporter है, ठीक है. So who involved in like export business, ठीक है. So suppose that recently they entered into a export transaction with ABC corporation from US. ठीक है, तो ये आपका US के साथ इन्होंने कोई एक्सपोर्ट किया है, ठीक है. एंड दिस XYZ इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है. तो एक XYZ लिमिटेड आपका इंडिया से जिसने एक्सपोर्ट किया है यूएस में. As per the sale invoice, let's say the sale is about 1 million US dollar, 1 million US dollar, and this ABC corporation will make this particular payments after 3 months of the shipments. ठीक है, shipments के 3 महीने के बाद वो आपका पेमेंट करेगा, एंड इट इज, लेट्स से इट इज बैक बाय LC, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट से आपका ये बैक किया गया, ठीक है. सो नाउ जैसे एक्सपोर्टेड ने अपना जो भी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है वो आपका इंडिया से भेज दिया, एंड सपोज दैट ABC कॉर्पोरेशन दे रिसीव दैट पर्टिकुलर कंसाइनमेंट. अब जो डेट ऑफ रिसीव, जैसे क्या होता है कि लाइक देयर आर टू टाइप ऑफ बिल, वन इज उसेंस बिल, अनदर वन इज डिमांड बिल इज विच आर पेबल ऑन डिमांड, जैसे ही आपका कंसाइनमेंट मिल जाएगा. बट इन केस ऑफ उसेंस बिल दे हैव अ प्री डिटरमाइंड डेट, जैसे ये हमारा उसेंस बिल का एग्जांपल है, दैट इज 3 months. ओके, अब 3 महीने के बाद उसको पेमेंट मिलनी है, बट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट में वो आपका, या एक ही एक्सपोर्ट से उसका पूरा बिजनेस चलेगा, ठीक है. दे हैव टू डू मल्टीपल एक्सपोर्ट, एंड दे हैव एंटर्ड इनटू सम अदर विद सम अदर पार्टीज for the export agreements. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, that means this XYZ Limited they need finance to procure or to manufacture the other export agreements. ठीक है, तो जो भी आपके commitments हैं उनको fulfill करने के लिए. So now in this particular case, what XYZ will do, XYZ will present this 1 million जो invoice है आपका, ठीक है, this invoice with some Indian banks or financiers. ठीक है, तो वहां पे इसके पास गया टू डिस्काउंट दिस पर्टिकुलर वन. उसने बोला कि सर लाइक जैसे, अब इट कैन बी इन टू वेज, ठीक है. इन केस ऑफ फैक्टरिंग, अगर हम लोग फैक्टरिंग की बात करते हैं, ठीक है, सो इन केस ऑफ फैक्टरिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ दिस XYZ लिमिटेड इज गेट हैंडल्ड बाय सपोज दैट SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हु विल वर्क एज अ फैक्टर फॉर XYZ लिमिटेड ऑन एन ओपन अकाउंट बेसिस. ठीक है, मतलब ओपन अकाउंट बेसिस मींस XYZ लिमिटेड के जितने भी एक्सपोर्ट्स आपके हो रहे हैं, सारे एक्सपोर्ट्स का जो
पेमेंट से या जो अकाउंट से या जो लेजर मैनेजमेंट है दैट इज जनरली टेकन केयर बाय द एसबीआई इटसेल्फ, ठीक है। तो व्हाट एसबीआई विल डू, दे विल डिस्काउंट अराउंड 75% to 80% ऑफ दिस ऑन गोइंग बिल, ठीक है। तो ये जैसे आपका 1 मिलियन यूएस डॉलर का 75 to 80% दे विल मेक पेमेंट टू XYZ लिमिटेड। ऐसे ही जब दूसरी ट्रेड होगी तो उसमें आपका उसका 75 to 85% और रिमेनिंग इसका जो होगा वो आपका पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्टरिंग, इट इज ऑलवेज इट कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स, ठीक है। इसके अगेंस्ट में कुछ गारंटी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ फैक्टरिंग। अगर हम लोग फोरफिटिंग की बात करते हैं, इन केस ऑफ फोरफिटिंग इट इज लाइक सिंपल आपका, जैसे suppose that this XYZ Limited they have a bill of 1 million US dollar, ठीक है, and they do not want to conduct all the businesses with a specific bank. उन्होंने क्या किया, they approaches to some XYZ or some like let's say PNB आपका as a financier, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक के पास as a financier वो आपका गए, ठीक है। उन्होंने बोला कि प्लीज डिस्काउंट दिस बिल फॉर 100%, ठीक है। एंड दिस इज like forfeiting is always without recourse and they are always backed by LC documents. उसने बोला कि यार ये 1 मिलियन यूएस डॉलर का बिल हम लोग रिसीव करने वाले हैं आफ्टर 3 months, तो आप क्या करें, अभी हमें आपका जैसे सपोज दैट वॉट एवर इज योर चार्ज 1 to 3% के बीच में ये रेंज करता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट अपर साइड 3%, तो 3% ऑफ 1 मिलियन आप काट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप हमें दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, और इसके बाद आपका जो सारा रिस्क है या जो पूरा लेजर मैनेजमेंट है दैट विल बी हैंडल्ड बाय पीएनबी। अगली बार इसने ट्रेड किया तो अगली बार इसने एसबीआई के साथ किया, उसकी अगली बार किया तो इसने कैनरा बैंक के साथ किया, या आपका एक्सिस बैंक के साथ किया, एसबीआई के साथ किया, तो ऐसे अलग अलग बैंक के साथ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन आपका, ठीक है। सो फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग बोथ आर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टर्स, बेसिकली मेजरली फॉर एक्सपोर्टर्स or export related companies, and they can discount their bills at 100% in case of forfeiting. It's a kind of one time transaction. In case of factoring, these institutions they generally work as a factor, and they generally discount 75 to 80% of bill, and they exporter is maintaining an open account with the factor, ठीक है। यहाँ पे forfeiter आपका it can be in every case it can be different, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं आपका काम कर रहा होगा। आई होप एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। सो नाउ वी विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन इन डिटेल ऑल्सो, ठीक है। So beside the regular financing avenues from bank, the exporter also have access to other avenues of financing, which also act as risk management product. Factoring and forfeiting are two products which allow the exporter to sell their books, debt and raise फाइनेंस अपफ्रंट, जैसे फैक्टरिंग में आपका 75 to 80% एंड इन केस ऑफ फोरफिटिंग इट इज 100%. फैक्टरिंग इज डिफाइंड, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट फैक्टरिंग. So factoring is defined as a continuing arrangement between a financial institution which is known as factor. जैसे हमारे केस में क्या था, SBI Limited, SBI Bank, ठीक है. So and business concern which was exporter or seller selling goods or services to track customer on open account basis, whereby factor purchase the client's book debts either with or without recourse to the client, and in relation there to control the credit extended to the customers and administrators the sale ledger, ठीक है. तो यहाँ पे जनरली इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, जैसे XYZ लिमिटेड ने आपका अपना फैक्टर अपॉइंट किया किसको, SBI को, ठीक है. सो नाउ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ XYZ लिमिटेड, different trade transactions और export transactions will be handled by SBI Limited, ठीक है. तो एंड दीज विल बी हैंडल ऑन ओपन अकाउंट बेसिस. जैसे एक ट्रेड आपका 1 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ तो उसका 75 to 80% विल बी upfront paid by the SBI to ABC Limited, ठीक है. Then when XYZ Limited, when XYZ will enter into a second trade, so they'll pay the remaining of previous trade as well as 75 to 80% of this particular trade. तो इस तरीके से and they'll charge some commission. It is like lesser than your फोरफिटिंग, ठीक है. फोरफिटिंग में आपका 1 to 3% का रेंज होता है, बट यहाँ पे 0.3 to 1% या 2% तक का आपका रेंज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. सो
ये एक ओपन अकाउंट बेसिस पर आपका जनरली हैंडल हो रहा था, एंड इट कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स का मतलब है विद गारंटी, और विदाउट रिकोर्स का विदाउट एनी प्रायर गारंटी इफ दैट एक्सपोर्ट इज बैक बाय एलसी, राइट। इमीडिएट अगर हम लोग बेसिक एडवांटेजेस की बात करें, इमीडिएट फाइनेंसिंग ऑफ 75 to 80% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, no need for LC, letter of credit, the saving cost of importers. Credit check on importers and buyers is done by factor. Sales ledger is maintained by factor. Credit protection on all approved debtors limit is done by factor. Advisory services for new areas or countries is also provided by the factor itself. Okay, so these are some major benefit which generally exporters they generally avail from the factoring transactions. Okay, so अगर हम इनको थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। सो अ फैक्टर प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब एज, पहले जैसे आपका डेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जैसे एक्सपोर्टर ने आपका चीजें एक्सपोर्ट करी, तो पूरा जो एक्सपोर्ट लेजर है ना उस कस्टमर के साथ, एवीसी लिमिटेड के साथ, दैट विल बी हैंडल्ड बाय एसबीआई इन आवर केस, ठीक है। तो जिसमें आपका कहीं ना कहीं जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा होता है खासकर जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो क्रेडिट रिस्क है या अदर्स है वो सारी चीजें, ठीक है। सो मैनेजिंग द सेल्स लेजर ऑफ द क्लाइंट्स, saving his administrative cost of bookkeeping, invoicing, credit control, and debt collections. This would also include work of following up for the debt collection, and these things are done by factor now. ठीक है। Credit protection, as professional factors will have the facility for credit intelligence to enable them to assess credit risk and advises their clients अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर आपका जो इंटरनेशनल इंपोर्टर्स या बायर्स हैं उनके क्रेडिट प्रोफाइलिंग को भी आपका चेक करवा रहा था थ्रू आपका अपने ओवरसीज ब्रांचेस के थ्रू, या फिर जो नोस्टो अकाउंट है उनके थ्रू, ठीक है। सो वोस्टो अकाउंट के थ्रू, ठीक है। सो द डेटाबेस ऑन द इंडिविजुअल बायर बिल्ट अप over a period of time by a factor could be used by the client for a fee. Factor financing, while in India financing is an essential activity for factor, in certain countries it may not be an essential service. Generally a factor will be willing to advance of 75 to 80% of outstanding debt, ठीक है। तो जिससे जो एक्सपोर्टर है वो अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सके और जो एक्टिविटीज हैं उनको कंटिन्यू रख सके, ठीक है। सो अगर हम लोग ओवरऑल आपका बात करते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम, तो इन दिस सिस्टम देयर इज ओनली वन फैक्टर, the exporter factor. This factor manage all aspect of factoring transactions, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आपका बेसिकली एक्सपोर्टर्स जो इंपोर्टर है आपका उसके थ्रू फाइनेंसिंग आपकी हो रही होती है, ठीक है। सो वी हैव 5 स्टेप इन दिस पर्टिकुलर वन इज सप्लायर, ठीक है, एक्सपोर्टर, एंड दूसरा आपका इंपोर्टर विच इज बायर, एंड तीसरा आपका फैक्टर, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज फैक्टरिंग एग्रीमेंट बिटवीन your supplier and exporter. Delivery of good is done by supplier to buyer, which is 2, okay. Then assignment of account receivables, which is done by मतलब account receivables team, supplier to your exporter. Funding of suppliers by supplier by export factors, ठीक है, exporter to suppliers. Payment by buyers to exporters, which is this, ठीक है। So this entire sales ledger is generally now managed by the factor itself. In case of if we talk about import factor system, ठीक है, in this system this type of there is only one factor. The import factor and seller directly deal with the import factor for all aspect of the transactions. So like buyer आपका import factors and a seller, ठीक है। import factors means which is belongs to your buyer, ठीक है। factoring agreement between supplier and import factor, delivery of goods supplier to buyer, then we have assignment of account receivables, ठीक है। so that is from this, ठीक है, a seller to import factor. Funding, so this to this, and payment of buyers is दिस टू दिस आपका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो सिस्टम एक्चुअली आपका काम कर रहा होता है, ठीक है।
सो टाइप ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है, सो थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स भी आपके हैं, उनको भी आपका गो थ्रू कर लेते हैं. सो फैक्टरिंग सर्विसेज आर जनरली डिवाइडेड इनटू several categories depending on the various factor like risk management with and without recourse जहां पे आपको मिलेगा, ठीक है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आपका, ठीक है, नेशनल मतलब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टरिंग, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड आपका, ठीक है. सो दीज आर थ्री मेजर कैटेगराइजेशन जिसके अंदर आपको ये मिलेंगे, बहुत इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है. सो बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट, सो वी हैव recourse factoring, ठीक है. In this case, the factor advance fund to a client against their invoices, but if the invoice remain unpaid by the buyer, the factor has the right to recover the advance amount from the client or seller, ठीक है. तो recourse means kind of where the guarantee is generally provided by the seller itself, ठीक है. तो अगर हमारा जो बायर है वो डिफॉल्ट करेगा, सो सेलर विल मेक, जो अभी उसने उसको एडवांस दिया है, फैक्टर ने जो आपका सेलर को एडवांस दिया है, दैट विल बी रिकवरेबल, राइट. इन केस ऑफ नॉन रिकोर्स, सो इट इज यूजुअली इट इज बैक बाय एलसी, तो इसलिए आपका या किसी गारंटी डॉक्यूमेंट्स के साथ होता है, तो इसलिए नहीं होता. हियर द फैक्टर अज्यूम द क्रेडिट रिस्क, ठीक है, फैक्टर आपका क्रेडिट रिस्क को बेयर करेगा. If the buyer fail to pay, the factor absorb the losses and cannot recover the amount from the seller, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे जैसे आपका जो कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट्स आपका होता है कि जैसे आपका बैंक, लाइक लेट्स से एसबीआई इज वर्किंग एज अ एडवाइजिंग बैंक फॉर एक्सपोर्टर्स कंट्रीज, ठीक है, जो एक्सपोर्टर कंट्री का जो बैंक है, जैसे एक्सपोर्टर ने एलसी आपका जनरेट किया एंड योर बैंक वाज आपका एडवाइजरी बैंक और उसी ने ये आपका फाइनेंसिंग किया. तो यूजुअली इन प्रैक्टिकल आपका जहां पे कॉन्फिडेंस इस लेवल का होता है वहां पे ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है. बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल, सो वी हैव डोमेस्टिक, both seller and buyers are located in same country. The factor collect from the domestic line. International cross-border factoring is in this case the seller and buyers are located in different countries. Often two factors are involved, one in seller's own country and another one is buyer's country, right, to facilitate the transactions. तो दो अलग अलग कंट्रीज का, सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है. इन एडिशनल टाइप आपका जैसे इनवॉइसिंग फैक्टरिंग आपका, द फैक्टर सिंपली बाय द इनवॉइस फ्रॉम द क्लाइंट प्रोवाइडिंग इमीडिएट कैश. दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैश फ्लो सिचुएशन सॉल्यूशंस. फुल सर्विस फैक्टरिंग, तो यहाँ पे खाली आपका पेमेंट्स का, फुल सर्विस इज लाइक जहाँ पे जो पूरे डेट है आपका या जो सेल्स लेजर है वो, ठीक है. So beyond simply purchasing the invoice, the factor take over the risk control, collection and sale account functions, allowing the client to focus on core business activities, ठीक है. Next one is spot factoring. Unlike a contractual agreement, spot factoring involve the factor buying individual invoices on one-off basis, ठीक है. काइंड ऑफ मतलब पूरा आपका, और जो काइंड ऑफ जो होता है ना डिमांड बिल की तरह, ठीक है. रिजर्व फैक्टरिंग ऑल्सो नोन एज सप्लाई चेन फाइनेंस. इन रिजर्व फैक्टरिंग अ बायर अप्रूव देयर सप्लायर्स इनवॉइस फॉर फाइनेंसिंग बाय अ फैक्टर इटसेल्फ, ठीक है. तो ये आपके कुछ मेजर टाइप आपका जो थे, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिफरेंसेस बिटवीन बिल डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं. बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ बिल डिस्काउंटिंग बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग, ठीक है. तो क्या क्या है बिल डिस्काउंटिंग का आपका, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड कोलेटरल्स, अलाउ विद रिकोर्स ओनली, ठीक है. कलेक्शन इज जॉब ऑफ एक्सपोर्टर्स वेयर collection is job of factor, ठीक है. फाइनेंसिंग is transaction based, ठीक है, it is open account based, ठीक है. It is only a mode of financing, ठीक है. It is consist of complete receivable management or the MIS or the entire ledger management. There is no assignment of debt. It involves assignment of debt also, ठीक है. Can be done with a weak balance sheet, no collateral provided, the receivables are good quality. Can be without recourse, with and without recourse. Collateral is a job factor, ठीक है. Financing is based on account receivables ledger, right? So these are some core differences between factoring
and your bill discounting. Okay, I hope this is clear. Very easy one. अगर आपने स्टार्टिंग में वो केस समझ लिया होगा तो वहां से आपके लिए आसान हो सके. Now we'll talk about forfeiting. ठीक है. So forfeiting जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज काइंड ऑफ वन टाइम ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, जहां पे आपका एक बार में जो फाइनेंशियर है या जिसको हम लोग फोरफिटर के नाम से जानते हैं, दे आर परचेजिंग बिल्स फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स. ठीक है, या हम बोल सकते हैं एक्सपोर्टर्स आर जनरली सेलिंग देयर एंटायर वैल्यू ऑफ बिल to the forfeiter or financier in one time transactions. ठीक है, once this deal is done, there will be no involvement from the exporter side. Entire risk is borne by the forfeiter, जो भी आपका फाइनेंशियर है उसके द्वारा. इवन द अकाउंट इज ऑल्सो मैनेज बाय द forfeiter itself, right? So another product for financing of export receivable is forfeiting. It can be defined as a mechanism for financing by discounting of export receivables without recourse to the exporters or seller for a medium to long term on a fixed rate basis for a full value of the contract or invoice. In another word, forfeiting is purchased by the financier of medium term claims on the buyers without recourse to the exporters. It is a source of financing and not a type of credit insurance. As such, no other cost other than financing cost are involved in the transaction. If you'll compare na cost of factoring and forfeiting cost is always higher than your factoring cost. It vary from 1 to 3%. वहां पे वो आपका 0.3% to 1% के रेंज में आपका रहता है. ठीक है, रीजन यहाँ पे रिस्क और वन टाइम ट्रांजेक्शन करके आपका basically that seller want to exit from that one and he want to focus on some other trades. ठीक है, इस तरीके से. So forfeiting is a form of export financing where an exporter sell medium to long term receivables or promissory note to a financial institution known as forfeitor. ठीक है, this arrangement allow the exporter to receive immediate cash and offload the risk associated with non-payment by the importer, including country and currency risk. All type of risk get eliminated through this one. ठीक है, फीचर्स आपका एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, टेक अवे पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोर्ट रिसीवेबल, make 100% available of finance against invoice without recourse facility, freedom from client administration and follow-up, cost saving on exporter credit insurance beside related paperwork, fixed rate financing, freedom from movement of interest rate for the tenure of that particular bill. So these are some benefits which generally exporters get when they entered into a forfeiting contract. अब benefit ज्यादा है तो इसीलिए cost भी थोड़ा सा ज्यादा है. ठीक है, so here we have again same flow chart as well. ठीक है, so mechanism of forfeiting transactions. ठीक है, so exporter who made we have importer, okay, and we have importer bank and we have forfeiter. Okay, so basically there is the agreement between exporter and your forfeiter. Okay, so first one is forfeitor give commitment to forfeit to exporters. So that means there is a commitment between these two. There is an agreement between these two parties, exporter and forfeitor. Second is commercial contract made between exporter and this. देखो सेकंड वन इज दिस, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के बीच में आपका जो इनवॉइसेस हैं या कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है. शिपमेंट ऑफ गुड टू इंपोर्टर्स, तो दैट विल बी डन बाय आपका एक्सपोर्टर. शिपमेंट ऑफ गुड डन बाय exporter to importer, seller to buyers. Exporter submit shipping documents to importer's bank through this bank. So exporter will submit to this to exporter bank. Importer bank obtain acceptance of importer and bill of exchange. So this to this. Okay? There is parties. Importer bank co-accept the bill of exchange and send it to through the bankers. Okay? So here to here, then exporter traders availed a bill of exchange to forfeitor. Okay? So then we have this to this. Okay? Forfeitor make payment to exporter. Forfeitor will make payment to exporters. Now exporter will exit from this transaction. ठीक है, now जो ट्रांजेक्शन है एक्सपोर्टर का काम हो गया, उसका पैसा मिल गया. ठीक है, अब इन लोगों के आपस की डील हो गई. ठीक है, forfeitor present bill of exchange to importer bank
ऑन मेच्योरिटी, ठीक है, 9 आपका, ठीक है, एंड इम्पोर्टर मेक पेमेंट्स टू दिस। तो इस तरीके से आपका पूरा ये जो ट्रांजेक्शन्स आपका इसका जो सीक्वेंस वर्क करता है। आई होप दिस इज क्लियर ऑल्सो, ठीक है। तो एक बार जल्दी से फीचर्स आपका पढ़ लेते हैं जिससे आप आसानी से इसको याद कर पाए, समझ पाए, ठीक है। सो फैक्टरिंग वर्सेस फोरफिटिंग, क्या डिफरेंसेस अभी तक आया? नाउ दिस चार्ट विल हेल्प यू, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछने की, वो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग, फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो 3 आपका सही होंगे, एक गलत हो, वो गलत ढूंढना जो आपके, उसके लिए आपको फंडामेंटली साउंड होना पड़ेगा, ठीक है। सो फैक्टरिंग इज अ शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन whereas forfeiting is a medium to long term transaction, ठीक है। Factoring can be done with or without recourse, forfeiting is without recourse. Factoring is applicable to both foreign and domestic, and forfeiting is applicable to international transaction only, ठीक है। Factoring is appropriate for ongoing open account basis and it is for one time, ठीक है। So it is one time which is backed by LC. Factoring necessitate a continuing arrangement between a factor and the customer in all sales of this. But in case of forfeiting, does not necessitate the seller routing other business through the forfeiter. Deal are closed transaction by transaction basis. ठीक है, तो these are 5 major और key differences among between योर फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग। आप अपने बुक को भी देखते हैं तो वहां पे भी कुछ ऐसे आपके स्टेटमेंट्स दिए गए, ठीक है। सो दिस इज फैक्टरिंग एंड दिस इज फोरफिटिंग, ठीक है। तो फैक्टरिंग सुटेबल फॉर ऑनगोइंग ओपन अकाउंट बेसिस, वन ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म नेचर, मीडियम टू लॉन्ग टर्म नेचर, ठीक है। फैक्टरिंग कैन बी विद और विदाउट recourse, it is always without recourse backed by LC. Require continuous arrangement between factor and client. That is he is not going to route all the trade. Factor assume responsibility for collection and help client reduce overheads for the same. Forfeiter responsibility extend to collection of forfeited debt only. Charges include those for forfeiting, collections, administration in this. Charges include discount and commitment charges, ठीक है। Factoring is commonly for domestic and international, it is only for international transactions, ठीक है। तो these are the differences. Now I hope everybody is clear about फैक्टरिंग वर्सेस फोरफिटिंग। अंडरस्टूड? यस और नो? समझ में आ रहा है, हाँ या ना? और कमेंट्स के थ्रू लिख के जरूर बताया करें, ठीक है। आप लोग मतलब फीडबैक शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर आप फीडबैक देते हैं, सजेशन देते हैं, सो दैट बिकम वेरी हेल्पफुल, राइट। चलो, नाउ द फाइनल पार्ट, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट विच इज नोन एज ट्रेड्स, ठीक है। सो ट्रेड a receivable discounting system. Basically, it is a platform, kind of a platform where exporters or companies, they generally upload their bills receivables, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, उसका एक बिल्स रिसीवेबल है, he is going to receive that particular money after 90 days. So suppose that if they require that particular money on immediate basis for working capital management, for purchase of raw material or procurements of any other goods and others, or payment of salary, rent and others, ठीक है, जो भी आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन अपलोड दैट पर्टिकुलर बिल ऑन ट्रेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग फाइनेंशियल्स आपके होंगे। सो अब उसमें जैसे आपने अपना बिल $1 million का बिल अपलोड किया एंड यू आर गोइंग टू रिसीव दैट पर्टिकुलर मनी आफ्टर 90 डेज। आपने बोला यार ये मेरा बिल है, कितने पे इसको डिस्काउंट करोगे? सो नाउ वी हैव मल्टीपल फाइनेंशियल्स, दे विल स्टार्ट मेकिंग देयर बिड। तो सबसे बढ़िया बिड देगा उसको हम उसको अलॉट कर देंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ auctioning platform, ठीक है। So trade receivable discounting system, which is called TRADES, is an electronic platform in India for facilitating the financing of trade receivable on MSME through multiple financiers. TRADES aim to address the critical issues of delayed payment to MSMEs by providing a mechanism for auctioning trade receivables, thereby enabling these enterprise to receive their dues in a timely manner, ठीक है। तो जनरली क्या हो रहा है, मतलब जो आपका बिल्स रिसीवेबल है उसको आप ऑक्शन कर रहे हो, ठीक है, एंड हुएवर इज मार्किंग द मेकिंग द हाईएस्ट बेट्स यू विल अलॉट टू दैट पर्टिकुलर वन। सिंपल सा आपका, ठीक है, और कुछ नहीं है। और जिससे जो एमएसएमईज या अदर्स हैं या जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है,
क्योंकि उनका जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो सकता है एंड दे कैन इन्वॉल्व इन मल्टीपल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा होगा, कैश मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, प्रॉपर वर्किंग कैपिटल होगा, सो दे विल स्टार्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट, राइट। सो हाउ डज ट्रेड वर्क्स, ठीक है, सो किस तरीके से आपका ये काम करता है। पहला, सप्लायर सप्लाई द प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर है उसने अपना सर्विस दिया, देन इट मींस आपका देयर विल बी अ इनवॉइस जनरेशन, ठीक है, सप्लायर अपलोड द इनवॉइस फॉर रिसीवेबल्स। Third one is the invoice is converted into factoring unit. Now this is known as factoring unit FU for bidding. ठीक है. Fourth one is financier bid against the FU और factoring unit आपका, ठीक है. तो financier आपका जो भी है they'll make the start making the bid, ठीक है. Supplier accept the bid, जिसका सबसे बढ़िया bid होगा उसको accept कर लेगा, ठीक है. Trade platform generate settlement instructions, debiting buyers and crediting financiers. तो इस तरीके से आपका जो पेमेंट्स आपके, तो ये एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म जो कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स को आपका या जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनको आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक जैसे आपके उसमें प्रोसेस फ्लो आपका थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। सप्लायर सप्लाई, देन आपका रिसीवेबल्स, ठीक है। थर्ड वन इज वेरीफाई एंड अप्रूव, जैसे ही आपका दिया है, ठीक है। फैक्टरिंग यूनिट आपका बना, ठीक है, जो भी इनवॉइस आपका था रिसीवेबल, देन फाइनेंशियर बिड, देयर बिड विल कम, ठीक है। देन सप्लायर एक्सेप्ट द बिड, ठीक है, जो भी सबसे आपका फेवरेबल बिड होगा उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ट्रेड प्लेटफॉर्म जनरेट, ओके, जो भी आपका डेबिट क्रेडिट है वो ट्रेड प्लेटफॉर्म जनरेट द सेटलमेंट्स एंड दैट इज द लास्ट वन, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। मतलब एक प्रॉब्लम थी छोटे छोटे एमएसएमईज की कि उनके बिल्स टाइमली बेसिस पे आपका नहीं मिल रहे थे या उनको पेमेंट्स नहीं मिले थे, तो उसका सोल्यूशन कि ठीक है आपका पेमेंट जब आएगा दैट बिलोंग्स टू अस, बट उसको डिस्काउंट कर लेते हैं अभी, आपको उसमें से इतना कट हमारा, क्योंकि हम एज अ फाइनेंसर काम कर रहे हैं, सिंपल सा आपका, ठीक है। सो क्राइटेरिया टू सेटअप एंड ऑपरेट एज अ ट्रेड, तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल, ट्रेड शैल हैव मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ 25 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो जो भी आपके ट्रेड्स में जो ऑक्शनर्स, जो फाइनेंशियर्स होंगे, देयर लाइक मिनिमम शुड बी, या कोई भी ट्रेड की तरह रजिस्टर हो रहा है तो कितना 25 करोड़, ठीक है। शेयर होल्डिंग लिमिट्स आपका, एंटिटीज अदर देन प्रोमोटर्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल इन ट्रेड, ठीक है। कोई भी ट्रेड्स आपका है उसमें जो ओनर्स हैं they should minimum own 90% of that particular one, 10% they can sell to others, simple सा। financial strength आपका, the overall financial robustness of the entity and its promoters will be critically assessed by the SEBI। ये सब कौन देखता है आपका, SEBI देखता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। which of the following statement about factoring are correct, ठीक है। So I hope you guys remember this particular thing. So we have already discussed this particular part in our concept videos. So factoring, forfeiting and bill discount, ठीक है। So in simple terms, factoring is basically it is happen on an open account basis, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, जैसे factoring and forfeiting is usually for importer exporters, ठीक है। So let's say you are an exporter from India and you are going to receive some bills like that is can be like that is with or without recourse. That bill is with or without recourse means we have some sort of guarantee in that particular one or we do not have that particular one, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली अगर हम लोग बात, जैसे फैक्टरिंग इज इट कैन बी विद और विदाउट recourse, ठीक है, एंड इट इज लाइक जो आपका बैंक है उस केस में, ठीक है, वी हैव एक्सपोर्टर, वी हैव बैंक हु जनरली वर्क एज अ काइंड ऑफ फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूशन आपका होता है उसको हम फैक्टर के नाम से आपका जानते हैं, ठीक है। सो दिस एक्सपोर्टर इज गोइंग टू रिसीव दैट पर्टिकुलर मनी, बट फॉर देयर वर्किंग कैपिटल पर्पस दे रिक्वायर्ड सम इमीडिएट मनी। सो व्हाट दे जनरली डू, जैसे आपका लेट्स से दिस एक्सपोर्टर डिड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है, विद ए, विद बी, विद सी। यूजुअली आपका इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा होता है, इट कैन बी इन डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे इसने इन सब के साथ आपके ट्रांजेक्शन के वेयर ही इज गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट आफ्टर 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज एज पर मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब क्या होता है, ही नीड सम इमीडिएट फंड्स टू मैनेज हिज वर्किंग कैपिटल, तो उसने आपके बैंक को क्या कर रखा है, आपका एज अ फैक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। फैक्टर इज लाइक कि ये क्या करेगा, इसको 75 to 80% तक का आपका जैसे लेट्स से दैट
जो भी इनवॉइस वैल्यू आपका होगा, ठीक है, लेट्स से ही एग्जीक्यूटेड दैट पर्टिकुलर ट्रेड, ही शिफ्ट द गुड्स इन ऑल, ठीक है, नाउ ही इज गोइंग टू रिसीव पेमेंट आफ्टर 90 days, बट based on those particular documents only he'll ask your bank to discount that particular one and advance में आपसे पैसा ले लेगा, ठीक है. So आपका फिर second transaction, third transaction, all the transactions in case of factoring is done by one factor, ठीक है. So मतलब एक बैंक आपका जिसके साथ एक्सपोर्टर का ओपन अकाउंट होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन, एंड देन व्हाट इज द बेनिफिट एसोसिएटेड विद दिस फैक्टरिंग एग्रीमेंट्स, द रिमेनिंग डेट एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय दिस फैक्टर इटसेल्फ, ठीक है, जिसको हम बैंक के नाम से आपका जानते हैं, ठीक है. अब सब में ना सेम चीजें आपकी हैं. अब जैसे ये दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्टरिंग. फोरफिटिंग इज लाइक इट इज ट्रांजेक्शन बेस्ड आपका, ठीक है. फोरफिटिंग में वी डू नॉट हैव एनी ओपन अकाउंट्स, ठीक है. सो लेट्स से दिस एक्सपोर्टर डिड नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स, सो यहाँ पे हम लोग उसको फाइनेंशियर बोलते हैं, ठीक है. सो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट विद सी, they generally finance that bill with your bank, ठीक है. देन आपका that is always recourse, ठीक है, ये आपका हमेशा recourse के साथ होता है forfeiting, ठीक है. देन आपका B के साथ किया तो उसको that was the finance by suppose that some other bank, let's say it was SBI. In another case he did it with PNB. In another case he done this particular one with Canara Bank. So इस तरीके से अलग अलग आप करें. And they generally the financier they generally discount 100% bill in that particular one, ठीक है. जितना भी उसका आपका अमाउंट है उसमें उनका जो भी कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन दे विल पे द एंटायर मनी टू द एक्सपोर्टर्स. देन एक्सपोर्टर विल एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वन. That administration is generally done by the financier itself and they'll collect that particular things, ठीक है. नेक्स्ट टाइम उसने एक्सपोर्ट किया तो वो आपका दूसरी पार्टी के साथ, दूसरे बैंक के साथ कर सकता है आपका. दिस फैक्टरिंग इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ एन ओपन अकाउंट्स, ठीक है. वहां पे एक एक्सपोर्टर के सारे जो चीजें हैं दैट इज हैंडल्ड बाय सिंगल बैंक एंड दे आर डिस्काउंटिंग 75 to 80%, ठीक है. जैसे आपका यहाँ का आएगा, ठीक है, तब दूसरा आएगा उसका 70 to 85%, इसका जैसे डेट आ जाएगा दे विल मेक दैट पर्टिकुलर पेमेंट. इस तरीके से कहीं ना कहीं जो टारगेट आपका कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज आपका हो रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों. तो ये हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है. आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास देखा होगा, ठीक है. अब यहां से आते हैं क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैक्टरिंग इज करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है. Factoring involve financing and collection of account receivables in domestic as well as in international market. True. The Factoring Regulation Act 2011 allow factoring without recourse in India. It is with recourse होना चाहिए था आपका, ठीक है. This is statement that is true, ठीक है. विद इन इंडिया है ना, ठीक है. सो अलाउ फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स इन इंडिया, ठीक है. फैक्टरिंग इंक्लूड मैनेजिंग सेल्स लेजर, collecting a debt and provide credit transactions. No, this is wrong, sorry, ठीक है. The factoring regulation 2011 allow factoring, नहीं, it is with recourse only, ठीक है, not without आपका, it is with recourse only, ठीक है. Factoring include managing sales ledger, collecting debt and providing credit control services. This is true, ठीक है. Bank provide credit facilities against receivables in their ordinary course of business are covered under the factoring as per the factoring regulation 2011. No, it is excluded from that particular one, ठीक है. That is not covered. This is also wrong. So we have to find out the correct statements. So only two statements are correct. So option 1 and 3. 2 and 4 are wrong because it is always with recourse in that particular case and it is excluded from that particular one. Okay? So option A should be right answer for this particular one. All right. So factoring is related to financing and collection of receivables. In India, factoring without recourse is not permitted. Okay? Statement 3, factoring involve credit control, debt collection and ledger management. Okay? And the fourth statement is providing credit facilities against receivables is excluded from factoring. ठीक है, तो आपका जो receivables है उनके against में we cannot provide any kind of credit facility, ठीक है, under the factoring regulation Act 2011 आपका, ठीक है. So these are the statement. पहला आपका factoring थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. So factoring is defined as a continuing agreement between financial institution which is known as factor
and the business concern, which is basically exporters selling goods or services to track a customer and on an open account basis, whereby the factor purchase the client's book debt either with or without recourse. Please do remember this point. This is very important. So many times examiner will ask this question. It is a general feature of the factoring things. Forfeiting is always without recourse, but it can be with or without recourse. Okay? Recourse to client and relations there to control the credit extended to the customers and administrator of sales ledger. ठीक है? तो आफ्टर एंटरिंग इन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है, बेसिकली एक एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट कर रहा है आपका बैंक एज अ फैक्टर, उसकी जो उस पर्टिकुलर लेजर की जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, लाइक जैसे कलेक्शन ऑफ बिल्स और डेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, दैट इज जनरली टेकन केयर बाय फैक्टर. मतलब ये आपका सिंपली कह रहा है कि फैक्टर इज थिंग कि वी विल टेक केयर अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स एंड एवरीथिंग, यू जस्ट फोकस ऑन योर एक्सपोर्ट, और आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होंगी दैट विल बी हैंडल्ड बाय आर बैंक एज वेल एज अ फैक्टर. ठीक है. So immediate financing of 75 to 80% of invoice. एक ये भी चीज आपको कई बार क्वेश्चन में मिलेगा, फैक्टरिंग वर्सेस फोरफिटिंग में. फोरफिटिंग इज ऑलवेज इट्स अ काइंड ऑफ वन टाइम ट्रांजेक्शन, तो वहां पे 100% बिल्स को डिस्काउंट किया जाता है, बट इन दिस केस इट इज 75 to 80%. नो नीड ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड, सो सेविंग कॉस्ट फॉर इंपोर्टर्स. क्रेडिट चेक on importers and buyers, that is, these are the facilities which are generally provided by factor to exporters. ठीक है. Sales ledger maintenance, credit protection on all approved debtors limit, advisory services for new areas or countries. ठीक है. So these are the services which are generally provided by factors to their exporters, या जिनके लिए भी वो आपका फैक्टरिंग का काम कर रहे होते हैं. ठीक है. So major services like debt administration means जैसे आपका नाउ दैट डील इज डन एंड शिपमेंट इज डन, एक्सपोर्ट शिपमेंट, तो उसके बाद आपका जो कलेक्शन या आपका करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के थ्रू जो भी एक्टिविटीज हैं, दे ऑल आर जनरली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय योर बैंक विच इज वर्किंग एज अ फैक्टर. ठीक है. सो मैनेजिंग द सेल्स लेजर ऑफ द क्लाइंट, सेविंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ बुक कीपिंग, इनवॉइसिंग, क्रेडिट कंट्रोल, डेट कलेक्शन. This would also include work of following up for the debt collection team. Credit protection आपका ठीक है. As professionals factor, we will have the facility for credit intelligence to enable them to assess credit risk and advise client accordingly. जैसे जो exporters जिनको हम export करें, जो importers हमारे हैं, उनकी profiling या others कंट्रीज में कहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज हैं वेयर वी कैन डू द सेल एक्सपोर्ट्स एंड ऑल, तो ये सारी सर्विसेज. फैक्टर फाइनेंसिंग, while in India financing is an essential activity for factor, in certain countries it may not be essential service, so they generally get आपका advances of 75 to 80% in this particular one. ठीक है. अगला, what is the maximum credit period permitted under domestic फैक्टरिंग इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड. ठीक है. तो कितना होता है, यूजुअली इट इज 90 डेज. ठीक है. 90 डेज आपका नॉर्मल पीरियड होता है. ठीक है. प्लस आपका इट कैन बी मैक्सिमम 60 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड, तो टोटल कितना हो गया आपका 150 डेज. ठीक है. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, 150 डेज इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड. हाँ, बिल्कुल सही. तो आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. So maximum credit period allowed under factoring is 150 days, which include grace period. ठीक है. अगर नॉर्मल पूछेगा विदाउट ग्रेस पीरियड तो 90 डेज, बट विद आपका इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड इट इज आपका 150 डेज. डैश इज अ टाइप ऑफ फैक्टरिंग. The import factor comes into focus only if buyer default in making the payments. So we have three type of factoring, तो जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे. Single factor system where we have importer factors as well as exporter, but आपका this in case of single factor system, ठीक है, the import factor come into focus only if the buyers आपका default. ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये रहता है. ठीक है. in case मतलब major responsibilities are generally done by the export factor itself. ठीक है. we have direct the another type is, this is the right answer again, direct export factors where we have only one फैक्टर विच इज लाइक जो जिसको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, आपका बाय द एक्सपोर्ट आपका
एंड द थर्ड वन इज आपका डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टर्स, जो आपका इंपोर्टर की तरफ से रहेगा, ठीक है. सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. प्लीज पे योर अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर coming examination. Your question can be based on these three statements also, ठीक है. So single factor system, in this type of factoring, the import factor comes into focus only if the buyer default in making the payments. In such cases, the export factor recover the amount from the import factor आपका, ठीक है. And is then left to the import factors to recover factor amount from the buyer. It is a kind of agreements, जैसे आपका LC का एग्रीमेंट्स होता है ना, ठीक है, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, तो उसी की तरह आपका ये काम कर रहा होता है, ठीक है. डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टर्स, ओनली वन फैक्टर विच इज फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स, ठीक है. दिस सिस्टम देयर इज ओनली वन फैक्टर, the export factors, ठीक है. This factor manage all aspect of factoring transaction, import export सारे. आपका डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टर, अगेन ओनली वन फैक्टर विच इज इंपोर्ट फैक्टर्स, ठीक है. And the seller directly deal with the import factor for all aspect of the transaction. So please do take care about these things, ठीक है. तो पहला आपका अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टर्स, ठीक है. So in this system there is only one factor which is export factors, ठीक है. This factor manage all aspect of the factoring transactions, ठीक है. जैसे आपका दिस इज द वन, ठीक है. सो बायर्स सप्लायर्स इनके बीच में दीज आर द एक्टिविटीज. फैक्टरिंग एग्रीमेंट्स आपका फर्स्ट, ठीक है. फैक्टरिंग एग्रीमेंट्स आपका यहाँ पे जो सप्लायर है एंड आपका जो एक्सपोर्ट फैक्टर्स है उनके बीच में. डिलीवरी ऑफ गुड्स आपका, ठीक है. सप्लायर डिड डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर्स. असाइनमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स आपका, ठीक है. असाइनमेंट आपका डिलीवरी हो गया तो जिसको आपका डॉक्यूमेंट चले जाएंगे. फंडिंग टू सप्लायर बाय दी एक्सपोर्ट फैक्टर्स आपका, दे विल मेक पेमेंट टू सप्लायर्स. पेमेंट बाय बायर्स, तो आप फिर ये आपका इसको पेमेंट करेगा. सो दिस इज द एंटायर गेटवे ऑफ योर आपका डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टर. इसी का रिवर्स आपका, जहां पे बायर्स इंपोर्ट फैक्टर्स के अंदर सारी चीजें आपका इंपोर्टर्स थ्रू के होंगे, ठीक है. So import factor system, in this type of factoring there is only one factor which is import factors, and seller directly deal with the import factors for all aspect of the transactions, ठीक है. तो आपका जैसे import factors आपका and suppliers, ठीक है. So first factoring agreements between import factors and supplier. Delivery of goods आपका supplier to buyers. Assignment of factor account receivables आपका, ठीक है. Assign bills submission और everything, ठीक है. फंडिंग टू सप्लायर्स, दे विल मेक पेमेंट्स टू सप्लायर्स, एंड आपका पेमेंट बाय बायर्स, देन दे विल रिसीव दैट अमाउंट फ्रॉम द बायर इटसेल्फ, ठीक है. तो ये इस तरीके से दो एक्टिविटीज आपका, दो मेजर टाइप जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बिल डिस्काउंटिंग. सो बिल both bill discounting and factoring involve financing of receivables. There are certain differences between them. Which of the following is key difference between bill discounting and factoring, ठीक है. तो bill discounting और factoring के बीच में आपका क्या क्या differences हैं. तो bill discounting involve assignment of debt, while factoring does not, ठीक है. नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो दोनों में ही आपका डेट है. फैक्टरिंग कैन बी डन विद अ वीक बैलेंस शीट. बिल्कुल हाँ, फैक्टरिंग हो सकती है इस पे, बिकॉज इट इज गुड बेस्ड ऑन गुड्स क्वालिटी, ठीक है. While bill of discounting require a strong balance sheet, 100% true, ठीक है. In factoring, the exporter collect the payments, while in bill of discounting, in both the cases, आपका bill discounting is based on the account receivables ledger, while factoring is transaction based. No, it is also account receivables, ठीक है. तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका, दैट इज ऑप्शन बी ओनली, ठीक है. सो एक ही स्टेटमेंट आपका इसमें जो करेक्ट है, ठीक है. नाउ दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है. ये आपको आने वाले एग्जाम में 1 मार्क्स देके जाने वाला है. इस इंटेंशन के साथ आपको फोकस करना है, ठीक है. सो बिल डिस्काउंटिंग रिक्वायर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड कोलेटरल्स, ऑलवेज विद रिकोर्स आपका. इट कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स, ठीक है. जैसे यहाँ पे लिखा है कैन बी डन विद वीक बैलेंस शीट, नो कोलेटरल प्रोवाइडेड, द रिसीवेबल्स आर गुड क्वालिटी, ठीक है. सो नेक्स्ट वन आपका कलेक्शन इज जॉब ऑफ एक्सपोर्टर, कलेक्शन इज जॉब ऑफ फैक्टर. फाइनेंसिंग इज ट्रांजेक्शन बेस्ड
एंड हियर वी हैव फाइनेंसिंग इज बेस्ड ऑन ओपन अकाउंट्स, ठीक है, हमने जैसे अभी डिस्कस किया था, ठीक है। आपका इट इज ओनली ओनली अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका पैसे की बात हो रही है, बट फैक्टरिंग के अंदर दैट एंटायर डेट एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय एंड अदर एडवाइजरी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय दिस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग MIS collection and even credit insurance, ठीक है। देयर इज नो असाइनमेंट ऑफ डेट, इट इन्वॉल्व असाइनमेंट ऑफ डेट आपका, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस आपका, ठीक है, सॉरी, इट इज देयर इज नो असाइनमेंट ऑफ डेट एंड देयर इज एन असाइनमेंट, द इट इन्वॉल्व असाइनमेंट ऑफ डेट ऑल्सो, राइट। तो ये थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिएगा, ये हेल्प करेगा आपको आने वाले एग्जामिनेशन में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए। So the question is, what is the usual range of the commitment fee in forfeiting? It is around 0.50% to 1.5 or something. हाँ बिल्कुल 0.50% to 1.50% per annum. Commitment fee आपका basically जो charges आपके लिए आते हैं, ठीक है, आपका किसके द्वारा, जो जिस भी पीरियड के लिए वो उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया, दे आर गोइंग टू रिसीव दैट मनी आफ्टर 90 डेज, ठीक है। लेट्स से फॉर 90 डेज का पीरियड जिसके लिए आपका फैक्टर is making payment to your exporter, so they'll charge some interest or commitment fee for that particular one, that is known as commitment fee, that interest for that particular period. So it is ranging between 0.50 to आपका 1.50% per annum, ठीक है। So commitment fee is payable to factoring agency for its commitment to execute specific forfeiting transaction at a firm discount rate within a specified time. It ranges between 0.50 to 1.5% per annum of the unutilized amount to be forfeited and is charged for the period between the date of commitment is given by the forfeiter and the date the discounting take place or until the validity of the forfeiting contract, whichever is earlier, ठीक है। Next one. So now the next question, अगला जो सब टॉपिक है that is forfeiting आपका, ठीक है। So which of the following statement about forfeiting are correct, ठीक है। अच्छा ये हमारा पहला हम एंटर कर चुके थे इसमें एक्चुअली forfeiting के अंदर ही, ठीक है, सॉरी। चलो, so now the question is around the forfeiting. Forfeiting is similar to your factoring services, जैसे factoring services होती हैं वैसे ही ये भी आपका काम करता है, but it is ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बेसिस, ठीक है। जैसे किसी एक्सपोर्टर ने आपका कोई एक्सपोर्ट किया आपका, ठीक है, तो जैसे इस बार उसका जो फाइनेंसर था SBI था, नेक्स्ट टाइम इट कैन बी सम अदर बैंक ऑल्सो, ठीक है। तो इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एन ओपन अकाउंट, ठीक है। जैसे फैक्टरिंग आपका ओपन अकाउंट उस एक्सपोर्टर के सारे ट्रांजेक्शन एक ही हैंडल करता है, यहाँ पे 100% बिल डिस्काउंट किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे उस केस में आपका 75 to 80% था, यहाँ पे सारे रिमेनिंग सर्विसेज आर सेम, ठीक है। लाइक रिमेनिंग सर्विसेज मींस लाइक जैसे डेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सारी चीजें हैं, लेजर मैनेजमेंट, दैट इज जनरली डन बाय फाइनेंसर इन दैट पर्टिकुलर केस, तो वहां पे फैक्टर बोलते हैं, यहाँ पे फाइनेंसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो फोरफिटिंग प्रोवाइड 100% फाइनेंसिंग विदाउट रिकोर्स। हाँ एक और चीज, दैट फैक्टरिंग कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स, बट इट इज विदाउट रिकोर्स, फ्रीइंग द एक्सपोर्टर फ्रॉम पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे उनका बीच में एग्रीमेंट हो गया, पेमेंट होगा, देन एक्सपोर्टर इज नॉट लाइबल फॉर एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से रहेगा। देन फोरफिटिंग इंक्रीज, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, फोरफिटिंग इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर, नहीं इट डिक्रीज आपका, ठीक है। तो उसको टेंशन नहीं लेना है ना, लेजर के अंदर सारी चीजें दैट इज हैंडल्ड बाय द फाइनेंशियर इटसेल्फ, ठीक है। फोरफिटिंग हेल्प एक्सपोर्टर टू अवॉइड रिस्क सच एज क्रेडिट रिस्क, करेंसी एंड पॉलिटिकल रिस्क, बिल्कुल सही, क्योंकि अब वो उस एक्सपोर्ट जो ट्रांजेक्शन है वहां से एग्जिट हो गया, जैसे उसने शिपमेंट किया, शिपमेंट के बाद ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम XYZ financial for forfeiting, so he'll receive that money from forfeiting. Now it is the headache of that XYZ of financial कि वो अपने तरीके से उसको आपका आगे मैनेज करेंगे, डिफॉल्ट भी होता है तो they'll be responsible, आपका ये जो फैक्ट एक्सपोर्टर है they'll exit from that particular one, ठीक है, अपना पैसा लेने के बाद। तो पहला एंड तीसरा, so first and third statement are correct, so option C should be right answer for this particular one, ठीक है। So statement forfeiting provide full financing without recourse.
Forfeiting allow exporters to transfer risk like credit risk, interest rate risk, currency risk, and all. So statement 2 was incorrect because forfeiting reduced administrative cost. It is not going to increase. It is going to reduce that cost. ठीक है? So forfeiting, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं. So another product for financing of export receivable is forfeiting. It can be defined as a mechanism for forfeiting by discounting export receivable without recourse. ये बहुत important point है guys, please ध्यान रखिएगा इसको. To the exporter seller for a medium term, so that is आपका generally for short term, but it is short to medium term आपका on a fixed basis for the full value of the contract. So 100% आपका discounting हो रहा है. Forfeiting is a form of export financing. An exporter sell their medium to long term receivables or promissory notes to a financial institution known as forfeiter. Forfeiter or financer. This arrangement allow the exporter to receive immediate cash and offload the risk associated with non-payments by the importers, including country and currency risk or political risk and currency risk. Country risk is basically आपका जैसे country risk क्या होगा, एक तो काउंटर पार्टी रिस्क हो गया, कमर्शियल रिस्क कि जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है, मतलब जो इंपोर्टर है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इंसॉल्वेंसी ऑफ द इंपोर्टर्स. Country risk or political risk is basically there are some restrictions which are generally imposed by the importer country. ठीक है, तो जहां का जो importer था उस कंट्री ने restrictions लगा दिए हैं कि आप बाहर कोई पेमेंट नहीं करोगे या इंडिया के साथ कोई पेमेंट नहीं करोगे, तो that is generally known as country risk. ठीक है, करेंसी रिस्क आपका जो फ्लक्चुएशन, ठीक है, लेट्स से दैट पेमेंट इज दैट इनवॉइस इज जनरेटेड इन डॉलर, तो अगर डॉलर के प्राइसेस के अंदर अप एंड डाउन होंगे तो दैट विल आल्सो इंपैक्ट द वैल्यू. तो दैट इज द थिंग्स व्हिच जनरली कम्स अंडर दिस. ठीक है, तो ये आपके पॉइंटर्स हैं, बिल्कुल फिंगर टिप्स पर रख लीजिएगा. टेक अवे पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सपोर्टर. पॉलिटिकल हमने डिस्कस किया कंट्री, कमर्शियल इज काउंटर पार्टी रिस्क. ठीक है, मेक अवेलेबल 100% फाइनेंस अगेंस्ट इनवॉइस ड्रॉन. इट इज विदाउट रिकोर्स फैसिलिटी. ठीक है, विदाउट रिकोर्स. ठीक है, फैक्टरिंग इज विद और विदाउट, बट इट इज विदाउट रिकोर्स. ठीक है, freedom from credit administration and follow-ups, it will be done by the forfeiter. Cost saving on export credit insurance beside related to paperwork. Fixed rate financing, freedom from movement of interest rate for the tenure of bill itself. ठीक है, so these are the features which are generally part of this particular things. ठीक है, चलो अब इनके बिजनेस एक्टिविटीज को देख लेते हैं. ठीक है, सो मैकेनिज्म ऑफ फॉरफिटिंग ट्रांजैक्शन. तो एक्सपोर्टर आपका इंपोर्टर, वी हैव इंपोर्टर्स बैंक एंड वी हैव फॉरफिटर. ठीक है, सो दीज आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो सबसे पहला आपका द एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड आपका फॉरफिटर. ठीक है, सो फॉरफिटर गिव कमिटमेंट टू फॉरफिट टू एक्सपोर्ट. ठीक है, एक्सपोर्टर्स आपका. ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट वन. ठीक है, देन सेकंड एक्सपोर्टर इज एक्सपोर्टिंग गुड्स टू इंपोर्टर. ठीक है, इनको बीच में आपका कमर्शियल ट्रांजेक्शन सॉरी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंड आपका शिपमेंट ऑफ गुड इज द नेक्स्ट वन. ठीक है, तो एक आपका इनवॉइस जनरेट हो गया और उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली आपका एक्सपोर्टर और दे आर सप्लाइंग गुड्स टू द इंपोर्टर्स. ठीक है, देन द फोर्थ वन इज आपका एक्सपोर्टर सबमिट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स टू इंपोर्टर्स बैंक. ठीक है, सो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स बैंक आपका. देन इंपोर्टर बैंक ऑब्टेन एक्सेप्टेंस ऑफ इंपोर्टर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपका जारी किया जाएगा वेरीफाई. ठीक है, आपका यहाँ पे. ठीक है, इन दोनों का इंपोर्टर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे बेसिकली आपका एक ऑर्डर डेट होगा, कितने डेट के बाद आपका डेज के बाद पेमेंट होगा एंड ऑल. इंपोर्टर बैंक को एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, सो आपका इंपोर्टर बैंक्स विल को 6 आपका इंपोर्टर बैंक्स विल importer bank co-accept the bill of exchange and send it to okay हाँ acceptance and send it to exporter. ठीक है, now they'll submit to आपका forfeiter. ठीक है, exporter tenders available bill of exchange to forfeiter. ठीक है, then forfeiter will make payment आपका next 8 आपका. ठीक है, then forfeiter present bill of exchange to importers bank 9th एंड 10th आपका he'll get payment from the importers. ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका जो जर्नी है, जो मैकेनिज्म आपका है,
वो जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा सा इनको रिवाइज कीजिएगा। कई बार ना जैसे अगर उसको पेपर टफ बनाना होगा, सो व्हाट दे विल डू, दे विल गिव दिस सीक्वेंस। ठीक है, जी CAIB में तो ये सीक्वेंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बट आई नेवर फेस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन JAIB, बट अगर वो रहता है ना तो कई बार वो आपको अगर उसको टफ बनाना होगा तो दे विल डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट CAIB में बहुत ये पूछे जाते हैं सीक्वेंसेस, आपका वो 4 स्टेटमेंट दे देंगे तो करेक्टली अरेंज आपको करना होगा कौन सा सबसे पहले आएगा इन ऑल, एक स्लाइड चेंज के साथ। ठीक है, तो एग्जामिनेशन से पहले आप चाहें तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the typical minimum transaction size for forfeiting? It is around $250,000 in all. ठीक है, हाँ इसी के अराउंड आपका होते हैं जनरली। So forfeiting can be defined as financing exports by discounting export receivables, evidence by bill of exchange or promissory note, acquiring a medium to long term maturities on a fixed rate basis, ठीक है, which is known as डिस्काउंट। ठीक है, ये सिंपली क्या होगा कि जैसे दैट एक्सपोर्टर इज गोइंग टू रिसीव मनी। ठीक है, ये आपका जैसे एक्सपोर्टर ने इसको किया, लेट्स से दिस बिल इज 10 मिलियन US डॉलर। ठीक है, 10 मिलियन US डॉलर का ये बिल था। ठीक है, सो इज दिस एक्सपोर्टर इज गोइंग टू रिसीव दिस वैल्यू आफ्टर लेट्स से 90 डेज। तो उसने बोला कि हम इसको 90 दिन के बाद हमें मिलेगा, आप हमें अभी इसको पे कर दो जैसे हम शिपमेंट करते हैं, एंड यू टेक 0.50 मिलियन US डॉलर। ठीक है, या 1 मिलियन US डॉलर, 9 मिलियन आप हमें अभी दे दो, एंड दैट दिस आपका जो फोरफिटर है दे आर गोइंग टू रिसीव दैट पर्टिकुलर वन एट द ड्यू डेट इटसेल्फ। ठीक है, जब आपका जैसे 90 डेज हो जाएगा या जब भी जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइप है उसके हिसाब से। ठीक है, तो कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, all forfeiting transactions have a minimum transaction size. Normally it ranges $250,000. In term of RBI guidelines, Exim and authorized dealers category 1 bank on non-recourse basis only are permitted to handle forfeiting transactions. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the key differences between factoring and forfeiting? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक ऐसा क्वेश्चन आपको वहां पे मिल सकता है। ठीक है, सो फैक्टरिंग डील विद अ ट्रांजेक्शन बैक बाय लेटर ऑफ क्रेडिट while forfeiting does not। क्या ढूंढना है हमें आपका डिफरेंस? ओके, फैक्टरिंग इज ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, forfeiting इज ओनली फॉर डोमेस्टिक नहीं। Factoring require continuous arrangement with a factor, whereas forfeiting is conducted transaction wise। बिल्कुल सही है। ठीक है, forfeiting involve collection, administration and MIS services, where factoring no, both include आपका same things। ठीक है, ये भी गलत है। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑल 3 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन सी आपका। ठीक है, सो द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। फैक्टरिंग आपका एक बार दोबारा से बहुत अच्छे से गाइस, बिल्कुल इस पे अपना आपके मास्टरी एक्सपीरियंसेस होने चाहिए इस पर्टिकुलर उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और अगर पूछेगा ना 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। अब 2 मार्क्स का वैल्यू आप लोग जानते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर ऑनगोइंग ओपन अकाउंट बेसिस फैक्टरिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन नेचर, फैक्टरिंग कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो आप लोग, तो इस पे स्पेशल फोकस करें। ठीक है, require continuous arrangement between factor and clients whereby sales are routed through the factor only। ठीक है, factor assume a responsibility for collection and help a client reduce overheads for the same change। Charges include those for financing, collection and debt administration or credit protection। Factoring are commonly यूज फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। बोथ आपका, ये एक सिर्फ इंटरनेशनल में काम करेगा मोस्टली। सुटेबल फॉर वन टाइम ट्रांजेक्शन 100% आपका विच इज बैक बाय LC। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपका। ठीक है, फोरफिटिंग इज जनरली विदाउट रिकोर्स। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी बैक बाय LC। ठीक है, LC के द्वारा बैक है, दैट मीन्स देयर इज सम बैंक हु इज प्रोवाइडिंग गारंटी फॉर दैट पर्टिकुलर पेमेंट, तो उसमें टेंशन वाली चीज नहीं है। तो इसमें हमें कोई आपका रिकोर्स मतलब किसी भी प्रकार की कोलेटरल्स या सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेलिंग और वी आर एज अ फाइनेंसर और फोरफिटर वी आर discounting it for 100%। ठीक है, seller need not route other business through this particular one। ठीक है, तो deal to deal basis। forfeited responsibility extend to collection of forfeited debt only। ठीक है,
चार्जेस इंक्लूड डिस्काउंटिंग एंड कमिटमेंट चार्ज which रेंज आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस लाइक जैसे 10 मिलियन का था 0.5 मिलियन यूएस डॉलर, और आपका जो कमिटमेंट चार्ज है दैट इज 0.50% टू 1.50% के बीच में, ठीक है। फोरफिटिंग इज कॉमनली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इसीलिए आपका $2.5 लाख तक के ट्रांजेक्शन भी आपका यहाँ पे जो हैंडल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज 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 डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। एक और स्टार आप मैं इसके लिए बना देता हूँ, इसको मैं 2 स्टार दे देता हूँ, जिससे आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी आपको इसको समराइज करके रखा है, लगभग सेम चीजें आपके हैं, कंपैरिजन विद इन अ सेम लाइन, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट है आपका ट्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड्स आर करेक्ट, ठीक है। तो ट्रेड्स के संबंध में आपका करेक्ट स्टेटमेंट, सो ट्रेड्स फैसिलिटेट फाइनेंसिंग फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एमएसएमईज थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स। तो इट इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये सिंपली क्या है, आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे देर इज एन एमएसएमई, एक एमएसएमई जिसका जो बिल्स रिसीवेबल्स है, ठीक है। लेट्स से ही इज गोइंग टू रिसीव आपका 50 करोड़ रुपीस आफ्टर 90 डेज, ठीक है। उसको जो रिसीवेबल्स है उसका उसके पास क्या है, आपका जो इनवॉइस है, इनवॉइस के साथ उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेड है आपका, मतलब 90 डेज के बाद ही विल रिसीव this suppose that 50 crore rupees, ठीक है। अब now for the working capital purpose or for other production in all procurement of raw materials and all, he required some immediate funds। अब इसको पैसे की जरूरत है, क्योंकि वो अपना मतलब जैसे जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो व्हाट ही विल डू, ये जो आपका एमएसएमई है कंपनी एक्स, व्हाट दे विल जनरली डू, दे विल यूज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, दे विल अपलोड दिस पर्टिकुलर बिल ऑन ट्रेड्स आपका, ठीक है। तो जहां पे फिर आपका जो फैक्टरिंग यूनिट्स आपके हैं, ठीक है, सो दे विल पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर वन, और फिर आपका जैसे सारे जो फाइनेंसेस हैं दे विल पोस्ट देयर विद कि हम लोग इतने में आपको इसको फाइनेंस डिस्काउंट करते हैं आपका इस तरीके से, ठीक है, कि लेट्स से 50 करोड़ है तो उस पे हम आपका जैसे आपको 45 करोड़ देते हैं, या ओवरऑल जो डिस्काउंट्स है कितने रेट पे करना चाहते हैं ऑल, जो बेस्ट होगा वो मैच होगा, एंड दिस कंपनी विल रिसीव द मनी, एंड आपका जो कहीं ना कहीं द ओनरशिप ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज विल ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, एंड दे आर गोइंग टू रिसीव दैट मनी आफ्टर 90 डेज वट एवर द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। सो पहला बिल्कुल सही है, द ट्रांजेक्शन अंडर ट्रेड्स आर विद रिकोर्स, नो दे आर विदाउट रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स आपके होते हैं ये ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रेड्स अलाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बोथ इनवॉइसेस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, यस ये सही है, बोथ आपका इनवॉइसेस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। द एक्सेप्टेड sorry, the concept of trades was introduced by RBI in 2014 itself, correct है, ठीक है। इट्स अ आरबीआई प्लेटफॉर्म, और ये जो पूरा है कॉन्सेप्ट आपका 14 में आता। ट्रेड्स डील विद बोथ रिसीवेबल्स, फैक्टरिंग्स एंड रिवर्स फैक्टरिंग, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही गलत स्टेटमेंट है, हमें क्या ढूंढना था, करेक्ट स्टेटमेंट 1 3 4 5 1 3 4 5 1 2 1 2, हाँ, सो ऑप्शन 1 3, हाँ बिल्कुल सही, सो ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1, ट्रेड्स हेल्प एमएसएमई टू गेट फाइनेंसिंग थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स। सो बेसिकली उसका जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं उसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्शनिंग हो रहा है, कौन कितना देना चाहता है, कितने में डिस्काउंट करना चाहते हैं। ट्रांजेक्शन अंडर ट्रेड्स आर विदाउट रिकोर्स, ठीक है, इट इज नॉट विद, इट इज विदाउट रिकोर्स, और मतलब we do not need any kind of guarantee, or that MSME they do not have to place any sort of guarantee in that particular case. Then आपका ट्रेड्स and they are not liable for that one, ठीक है, जो होगा। ट्रेड्स allow both invoice and bill of exchange discounting introduced in 2014 by RBI. Trades support both receivables factors and reverse factoring to ensure better pricing and higher transactions. I'll show you the entire format also. Yes, तो ये है आपका सीक्वेंस, कैसे काम करता है, जैसे सब जो आपका कोई एक्सपोर्टर है, कोई भी एमएसएमई है, दे रिसीव वन इनवॉइस, ठीक है, आपका जैसे उनके पास इनवॉइस है या जो भी, जैसे उन्होंने आपका शिपमेंट किया, दे गॉट सम, जैसे चेक होते हैं ना वैसी टाइप के आपका, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, ठीक है। सो सप्लायर सप्लाई द प्रोडक्ट और सर्विसेज, सप्लायर अपलोड द इनवॉइस फॉर द रिसीवेबल्स, ठीक है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे, ठीक है। देन आपका
द इनवॉइस इज कन्वर्टेड इनटू अ फैक्टरिंग यूनिट, हम इसको बोलते हैं एफयूज आपका, फैक्टरिंग यूनिट्स फॉर बिडिंग। देन आपका फाइनेंशियर बिड अगेंस्ट फैक्टरिंग यूनिट, देन आपका सप्लायर एक्सेप्ट द बिड, जो उसको सबसे सही बिड लगती है, एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म जनरेट सेटलमेंट इंस्ट्रक्शंस डेबिटिंग बायर्स एंड क्रेडिटिंग फाइनेंसेस। तो सेटलमेंट्स भी आपका दैट इज जनरली डन बाय दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और थोड़ा सा डिटेल में जैसा आप अपना बुक खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। सप्लायर सप्लाई द गुड्स, ठीक है, देन आपका रिसीवेबल्स, ठीक है, वेरीफाई द अप्रूव्स, बायर्स वेरीफाई एंड अप्रूव द आपका इनवॉइस एंड ऑल, ठीक है, सो देन वी जनरेट द फैक्टरिंग यूनिट्स, आपका फाइनेंशियल बिड, ठीक है, supplier, हाँ, कि they sorry, first supplier supply, then they receive the receivables and they'll upload this particular one, then verify buyers आपका जो उसमें bid participate करना चाहते हैं, they'll approve this particular one, factoring unit will create, factoring up financiers bid will be there, then favorable bid आपका जो होगी उसको accept किया जाएगा, trades generate the settlement and आपका payments will be there, ठीक है। तो इस तरीके से जो entire sequence आपका इसमें रहता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर होल्डिंग परसेंटेज परमिटेड फॉर एंटिटीज अदर देन प्रमोटर्स इन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म? कितना हो सकता है आपका? इट इज 10%, as I can recall. It is 10% or 25 crore something. ठीक है, so 10% or 25, yeah, 15 or 25. 10% I'll go with option B. Yes, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। So entities are desirous of setting and operating trades should fulfill the following criteria, ठीक है। So if any organization they start this trade platform, so ये guidelines आपका, ठीक है। तो financial criteria is, since trade will not allowed to assume any credit risk, the entity minimum capital paid up equity capital shall be 25 crores, ठीक है, downside आपका। The foreign shareholdings, the foreign shareholdings in trades would be as per the extent foreign investment policies, जो FDI rules हैं and all. तीसरा आपका entities other than promoters will not be permitted to have shareholding in excess of 10% of the equity capital of trades. The overall financial strength of the promoters or entity seeking to set up trades would be an important criteria of assessment and selections. Okay? So these are some areas, like if any company, they generally apply for this particular one. So these are the basic requirements to establishing a trades platform. Okay? Next one. Okay, so this is it. तो guys ये आपका फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, बिल डिस्काउंटिंग एंड द फाइनल ट्रेड प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा रिविजन लगेगा, दो आई अपलोड द क्वेश्चंस इन योर मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका काफी रिविजन होगा एंड आई हैव केप्ट दैट कि यू कैन हैव अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स इन ऑल, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आपके रिविजन में ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही कहते हैं। नाउ आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम एंड वी विल बी डिस्कसिंग वन मोर यूनिट ऑफ योर मॉड्यूल डी, ठीक है। सो जल्दी से जल्दी मॉड्यूल डी करते हैं, देन वी विल कंप्लीट मॉड्यूल सी। सी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देन ए एंड बी दे हैव इक्वली दे बोथ द module have equal weightage, so they'll take equal time also. Okay, so this is it from my side. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, and all the very best for your preparation, guys. Thank you.